Namaskar. Today we will continue our previous lecture, which was based on the solution of non-holonomic systems by using the Lagrange's multiplier method. In that lecture, I have explained you the theory of Lagrange's multiplier method, and here we will apply it to a dynamical system. Uh, when I told you the Lagrange's multiplier method, we uh, explained that this method, how the Lagrange's multipliers are chosen. And finally, this was the mathematics which I told you in the previous lecture. And finally, in this mathematics, the two important things which we had, one is this expression 3. This expression 3. This is the important expression which is related to the constant. As we are dealing with the non-holonomic constants, at the time of applying this method, I'll apply it to a holonomic system, not to a non-holonomic system. The reason being that non-holonomic system is a generalized case and holonomic system is a particular case. So whatever method I have discussed here is applicable for holonomic as well as for non-holonomic system. As I have to tell you the procedure of application, how we apply it. So I am taking a simple problem which is related to a holonomic problem. Because the procedure is same for the two problems. So to know that how we apply the method, I'll consider such type of problem where you can get the idea that if your system is holonomic, then still how can you use this method. So first of all, as I told you that this three equation is very important, which is your constant, which is reflecting your constant. And as I wrote that ALK, ALT, this ALK, this ALT, I should write it here, ALT, this is not K, this is T. Just a minute. This is A, oh, this will be ALT. These two, ALK and ALT, are to determine with the help of constant. तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि constant से हम इसे कैसे determine करते हैं, ठीक है? And then we finally got this expression. This was the expression which was Lagrange's equation for non-holonomic system. These lambdas are the multipliers. So I am starting with the problem, which is a problem when you are having a cylindrical hoop which is sliding on a slope without slipping. There is no slipping. This is rotating, and this is rotating on the slope, and that this is coming down, but this is not slipping here. So it is the motion of a hoop moving on a slope without slipping. Moving, you can also say rolling on a slope in downward direction without slipping. So this is the dynamical problem which I have to describe by using the Lagrange's multiplier method. So first of all, if I see some relations in this problem, you see this is the radius. Just a minute.
This is the radius of the hoop, which is fixed. This is L. Height of this slope, this is also fixed. This phi is also fixed. These are not the variables. While this theta is the variable because it depends upon the 2 points of consideration. This point is actually reflecting this B. That means it is the starting point where the hoop is touching this surface. And as the hoop will move, so whatever will be its point of contact will provide you this x. So this x is your variable. This theta is also variable. But this x and this theta both are related to each other. So you see, you are having two variables. One is x and another is theta, and both are associated. How we write their association? You have x is equal to r theta. Now this is your constant. This is the constant. And if you look at the degree of freedom of this problem, there is only one degree of freedom. Degree of freedom is 1. And your coordinates are 2. What are the coordinates? X and theta. And both are related with the help of this equation. I'm not bothering whether it is holonomic, whether it is non-holonomic. I'm just looking the way of applying the Lagrange's multiplier method. So from here, from this x is equal to r theta, I may write delta x minus, you can write this constant like f function of x and theta is equal to x minus r theta. आप इसको ऐसे लिख सकते हो. Or you may write it as f x theta is equal to r theta minus x equal to 0. कैसे भी आप लिख सकते हैं. तो ये है कांस्टेंट. इस कांस्टेंट से हम 1 को अगर देखें, आप 1 से भी ले सकते हो और इस फॉर्म से भी ले सकते हो. दोनों तरीके से ले सकते हो. 1 को मैं लिख सकती हूँ डेल्टा 1 को मैं लिख सकती हूँ आर डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0. यानी आई हैव डिफरेंशिएटेड इट because I have to convert it into an equation which is in terms of derivatives. इसको मैं ये भी कह सकती हूँ this is मैं इसको ये भी कह सकती हूँ, इसका मुझे वेरिएशन लेना है r d थीटा dt minus x dx dt is equal to 0. So d theta dt is reflecting the velocity, rotational this is the angular velocity, and dx dt is again the velocity. So I mean to say that with the help of 1, I may get one constant having some derivatives. So how will I write? R delta theta minus x, r delta theta minus delta x is equal to 0. This is the form of your constant. ठीक है. अब हमारा जो मेथड था वहाँ पर ये था कि हमने कुछ इस तरह से लेमडास को हम बाद में चुनते हैं. हम ये कहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है कांस्टेंट है वो कैसी थी, सिग्मा ए एल के डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू 0. ये हमारी कांस्टेंट थी. एंड व्हाट दिस वेरिएशन इज फॉर के. दिस इज फॉर के. आपके पास ये 2 है तो k इज इक्वल टू 1 to 2. अगर आप टाइम भी बाई चांस इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, हम ये बॉदर ना करेंगे, हम वर्चुअल की बात कर रहे हैं, तो यू कैन टेक k इज इक्वल टू 1 to 3. वहाँ पर टाइम भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो बाद में 0 हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल में डेल्टा टी कुछ होता नहीं है. पर यहाँ पर और l क्या है यहाँ पर, व्हाट इज दिस l? L reflects the number of constants या L depends upon the number of constants. हमारा एक ही कांस्टेंट है तो L हमारा 1 है. तो मैं इसको अगर खोलूं इक्वेशन 4 को, तो 4 क्या देगा? A1 1 डेल्टा Q1 एंड
A12 डेल्टा Q2 इज 0। ये इस तरह से आएगा, जिसमें हमारा A11 व्हाट इज डेल्टा Q1। डेल्टा Q1 को अगर मैं थीटा कह दूं, डेल्टा Q1 माने वेरिएशन इन द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दो हैं, एक है थीटा और एक है एक्स। दूसरा हुआ A12 एंड व्हाट इज डेल्टा Q2। डेल्टा Q2 इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स, इट इज डेल्टा एक्स। तो ये ऐसा बन गया। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इस 3 को और इस 5 को यदि कंपेयर करूं तो मेरे पास A11 आया R और A12 आया -1। ठीक है, इनको जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है वो ऐसे होता है कि इसे हम लिखते हैं AR जो R के रिस्पेक्ट में है, और इसको लिख देते हैं थीटा जो थीटा के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, इसका मतलब जब हम ये लिख रहे थे तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम लिखते A थीटा डेल्टा थीटा प्लस AR डेल्टा R, और आप ये भी ले सकते हो AT डेल्टा T इज 0 एंड बिकॉज डेल्टा T इज 0 देयर इज नो वर्चुअल वेरिएशन इन टाइम, तो इसके बाद खाली ये खत्म हो जाता और ये ऐसे ही रह जाता। तो अगर आप इसे हमारा क्योंकि x है, यहाँ पर हमारा x है, ओहो ये गलत हो गया, ये हमारा x है ax डेल्टा x, x हमारा वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारा ये r नहीं आएगा। इनफैक्ट एक मिनट, AR में यहाँ पर मुझे लेना चाहिए था, दिस इज नॉट AR, दिस इज A थीटा एंड दिस इज AX, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब आप कंपेयर करो, तो यहाँ से कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो यहाँ से, तो डेल्टा थीटा के साथ R है, यहाँ डेल्टा थीटा के साथ A थीटा है, तो A थीटा बन गया R। AX है यहाँ डेल्टा एक्स के साथ, यहाँ डेल्टा एक्स के साथ -1 है, तो AX हमारा आ गया -1। तो हमने इस तरह से A थीटा और AX को तय कर लिया कि ये क्या बन रहा है। ठीक, अब हमारी लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन है, नाउ लैग्रांजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन। नेचुरली क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं, थीटा और एक्स, तो दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो लैग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगी। लेकिन अगर हम लैम्डा की बात करें कि हमारे कितने लैम्डा होंगे, तो अब आप देखिए हमारी इक्वेशन है डी डी टी ऑफ डेल्टा एल। दो वेरिएबल्स हैं, एक है थीटा और एक है एक्स, तो एक होगी थीटा के रिस्पेक्ट में, एक होगी एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल्टा थीटा डॉट माइनस डेल्टा एल डेल्टा थीटा प्लस यहाँ पर हमारा होता था लैम्डा के लैम्डा एल, लैम्डा क्या बना लैम्डा, ये थीटा के लिए है तो इक्वेशन में यहाँ पर भी आ जाएगा ए थीटा, दिस विल बी ए थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। आप एक बार वापस देखिए, ये देखिए ये हमारा एक एक्सप्रेशन था जिसमें ये ऊपर वाला देखो ये एक्सप्रेशन था, तो यहाँ पर हमारा चलता था लैम्डा एल ए एल के। एल एल क्या रिप्रेजेंट करता था, एल की वैल्यू क्या थी, देखिए आप हमारे पास एल की वैल्यू होती थी 1 to m। m क्या होता था, नंबर ऑफ कांस्टेंट होता था, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट इस केस में 1 है, केवल एक ही कांस्टेंट है हमारे पास, तो हमारा जो एल है वो ए की वैल्यू लेगा, तो लैम्डा भी ए की होगा। ठीक है, ये हमारा लैम्डा सेम रहेगा, एक ही लैम्डा होगा, और जो दूसरी इक्वेशन होगी वो बनेगी डी डी टी ऑफ डेल्टा एल डेल्टा एक्स डॉट, क्योंकि ये जो केस है ना ये हॉलोनॉमिक है नहीं हॉलोनॉमिक है, हमें ये पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, वो मोर देन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहे हैं, तो हमें यही मेथड लगाना पड़ेगा। ये मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एल डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा विल रिमेन सेम
and here you will get ax is equal to 0. तो बेसिकली आप यहाँ पर पहुँच गए जिसमें आपको L चाहिए, जिसमें लैम्डा हम डिटरमिन करेंगे क्या है, ए थीटा और ए एक्स हम निकाल चुके हैं फ्रॉम 6, राइट। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि हमारा L क्या बनेगा, और ए थीटा ए एक्स हम निकाल ही चुके हैं, तो हमें L देखना है कि अब इस डायग्राम से L कितने के बराबर आ रहा है। अगर हम L की बात करें तो यहाँ पर इसको पहले देख लेते हैं, हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। जो L होता है उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी और फिर होती है पोटेंशियल एनर्जी, L इज इक्वल टू टी माइनस वी। क्योंकि ये जो हूप है ये रोल भी कर रहा है, तो यहाँ पर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी रोल होगा। ये मूव भी कर रहा है और साथ में रोल भी कर रहा है, तो ये रोल करते करते ही नीचे आ रहा है, ऐसे स्लिप नहीं कर रहा है, रोल करते करते नीचे आ रहा है। तो उस केस में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें हमारे दो पार्ट होंगे, एक काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन और ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मोशन जो हो रोटेशन की वजह से रहा है, एंड सेकेंड जो इसमें रोटेशन हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के इसके दो पार्ट हो जाएंगे, वो मैं अभी नेक्स्ट उस पर लिखती हूँ स्लाइड पे। इसी तरह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे V की, तो क्योंकि मैंने y एक्सिस नीचे की डायरेक्शन में लिया है तो V में हम क्या लगाएंगे, m इसका मास है, g ग्रेविटी है, तो mg एंड दिस हाइट, जो भी ये मैंने रेफरेंस प्लेट ले ली अगर, तो दिस विल बी mgh. Now what is this h? This h may be calculated with the help of this L and this height. This h will be L minus this much. इसको हम कुछ नाम दे दें, यदि इसको D कह दीजिए, तो जो h है आपका वो L माइनस बी डी है, और बी डी क्या है, बी डी है x साइन फाई, तो यहाँ से h भी निकल आया, तो हम अब L और V दोनों लिख सकते हैं। L है L इज इक्वल टू हाफ m, आगे हमें क्या लेना है, L में हमें पहले हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, T इज इक्वल टू हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस अब हमें क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके लिए हाफ I थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर से थोड़ा सा लिखें तो हाफ, ये m चेंज होगा, कैपिटल M है हमारे पास, m हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ, this I may be written in terms of mass and that will be half m r square, क्योंकि वहाँ पर अगर आप उसकी डिस्टेंस देखें तो r है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, एंड थीटा डॉट स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस 1/4 m r square theta dot square. This is your T. इसको हम कह देते हैं 9, and what is V? V is equal to mg h, and as I told you in this slide that your h may be calculated from OB minus BT. So where h is equal to OB minus BD, OB है ये, हाँ B minus BD, OB is L and BD is x sin phi, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, V is equal to mg L minus x sin phi, T भी आ गया है V भी, तो I can calculate L is equal to T minus V half m x dot square
1/4m r square theta dot square, then minus mg L minus x sin phi। ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस हैं दोनों, इसमें हम कभी कभी एक ही इक्वेशन को हैंडल करने से सॉल्यूशन आ जाता है और कभी हमें दोनों भी उठानी पड़ती हैं। तो इनको अब हम लिखेंगे पहले इक्वेशंस को। तो हमें एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट, एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट, ऐसे ही थीटा और एक्स के लिए चाहिए। तो हम निकाल लें, पहले थोड़ा रखने में सावधानी हो, सुविधा हो जाएगी। एल थीटा अगर मैं निकालती हूँ तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, क्योंकि थीटा का टर्म ही नहीं है इसमें। डेल्टा एल डेल्टा एक्स अगर मैं निकालती हूँ तो इट इज़ एम जी साइन फाई, यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है। अब हम निकालें डेल्टा एल डेल्टा थीटा डॉट, तो ये आ रहा है m/2 r स्क्वायर थीटा डॉट, क्योंकि ये टर्म में थीटा डॉट आ रहा है। और अगर हम निकालें डेल्टा एल डेल्टा एक्स डॉट, तो इट इज़ एम एक्स डॉट। इन सबको रख देते हैं इक्वेशंस में। इक्वेशन हमारी है 7 और 8। 7 में अगर हम रखते हैं तो वो था डी डी टी ऑफ डेल्टा एल डेल्टा थीटा डॉट m/2 r स्क्वायर थीटा डॉट, then minus delta L delta theta which is 0, and then it was lambda a theta। a theta कितना है यहाँ पर? a theta है r, so plus lambda r is equal to 0, और m/2 r तो कांस्टेंट है, थीटा डबल डॉट प्लस लैम्डा r इज इक्वल टू 0। आप इसको कह सकते हो लैम्डा इज माइनस m/2 r थीटा डबल डॉट। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे। और यदि हम 8 इक्वेशन से देखें तो 8 इक्वेशन में था डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एल डेल्टा एक्स डॉट विच इज़ एम एक्स डॉट, फिर था डेल्टा एल डेल्टा एक्स विच इज़ एम जी साइन फाई, देन लैम्डा लैम्डा सेम, एंड थीटा एक्स, सॉरी what was our x, ax is -1, यहाँ पर ax रखना है तो -1, तो ये हो गया माइनस लैम्डा, 1 रखने पर -1 रखने पर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें, m x डबल डॉट माइनस एम जी साइन फाई माइनस लैम्डा इज 0। ठीक है। यहाँ पर इस लैम्डा को हमें देखना है। देखिए लैम्डा 11 से आ रहा है, मगर लैम्डा 11 से जो आ रहा है वो थीटा के फॉर्म में आ रहा है। अगर किसी तरह एक्स के फॉर्म में आ जाए तो आप यहाँ पर देखिए हमारा एक रिलेशन है x इज इक्वल टू आर थीटा 1 में। तो हमने किया सिंस x इज इक्वल टू आर थीटा, सो दिस इम्प्लाइज x डॉट इज आर थीटा डॉट and x double dot is r theta double dot. That simply means you can replace your theta double dot by x double dot upon r. तो इसको हम यूज करें, 11 से हमारे पास आ जाएगा यहाँ तो, हाँ ठीक है, 11 से हम ले लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा पर्पज है लैम्डा को निकालना, लैम्डा इज -m/2 minus m/2 r, and in place of theta double dot you can put x double dot upon r, और ये तो फिर और सिंपल हो गया, -m x डबल डॉट अपॉन 2। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को यहाँ पर हम रखें यदि, हाँ हालांकि ये अभी भी कंप्लीट नहीं है वैल्यू लैम्डा की, तो
ये कर सकते हैं इसमें कि जो हमारा थीटा डबल डॉट है, एक मिनट, थीटा डबल डॉट यहाँ लेमडा के फॉर्म में आया है और ग्यारह, एक हमारा ये है 11 और एक आया 12, तो यहाँ पर हम रखें, पहले 12 में रख के देखते हैं। 12 में रखिए आप एम एक्स डबल डॉट माइनस एम जी साइन फाई, और लेमडा की जगह मैंने ये रख दिया प्लस एम एक्स डबल डॉट अपॉन 2 0। इसको और इसको कंबाइन कर लेते हैं, तो ये आ गया 3m एक्स डबल डॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। एक्स डबल डॉट फाइनली आपके पास आ गया 2/3 g साइन फाई। और जब एक बार एक्स डबल डॉट आ गया तो लेमडा भी आ गया। लेमडा यहाँ से ले लो, 14 से 14 से क्या है, लेमडा इज इक्वल टू माइनस m/3, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई। ये वैल्यू आ गई लेमडा। ये मल्टीप्लायर भी निकल आया है और एक्स डबल डॉट भी आ गया आपके पास। एक्स डबल डॉट क्या है, 2/3 g साइन फाई। इसको आप लिख सकते हो इसको आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ एक्स डॉट 2/3 g साइन फाई, और भी लिख सकते हो इसको डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, नाउ डीवी dt को फिर से थोड़ा चेंज करें हम। डीवी dt इज इक्वल टू 2/3 g साइन फाई, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, डीवी, इसको चेंज कर लेते हैं, डीवी dx dt 2/3 g साइन फाई, और dx dt v होता है तो v dv dx ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ v²/2। And now integrating with respect to x, you will get 2/3 g sin phi into x plus some constant of integration, and when your x is 0, yani initial point par what is velocity, it is also 0, so this implies a is 0, and finally you get v²/2 is equal to 2/3 g sin phi x, right? But what is the value of x finally? Your x is varying from you look at this picture. This was your L, y was varying from 0 to L, and this is your x. So this length is also fixed. So whatever is its length, your x will be fixed from here. X is varying from 0 to this point. So whatever will be the value of x, it will be put there and you will get the value, final value. So your velocity is 4/3 g sin phi x square root, where
maximum of x will provide velocity at the bottom. ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया। इस तरीके से हम करते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल के, और जो मैंने एक इक्वेशन इसमें पहले वाली यूज़ नहीं की थी, अगर आपका लेमडा निकल आता है तो आप वहाँ पर रख करके भी ये सारा सॉल्यूशन कर सकते हो। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ Lagrange's multiplier method. If you either you have the non-holonomic constant or you have some holonomic constant, then also you can use this method. Thank you.